दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अपना पीसीएस क्लासेस में। फ्रेंड्स, टुडे वी विल सी द यूनियन बजट 2024-25, ओके, एंड आफ्टर दैट इकोनॉमिक सर्वे। ये कल वीडियो अपलोड हो जाएगा। एंड वन मोर थिंग्स फ्रेंड्स, जो वन लाइनर है आई दृष्टि की वन लाइनर, पार्ट 1 इज ऑलरेडी अपलोडेड एंड पार्ट 2 विल बी अपलोडेड टुनाइट, ओके। तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं उसका लिंक, ठीक है दोस्तों। लेट्स स्टार्ट यूनियन बजट 2024, ओके। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन present her seventh budget, okay, seventh budget on July 23, 2024, okay, for the financial year 2024-25. She is equally recorded the former prime minister थे जो मोरारजी देसाई, उनके इक्वल जिन्होंने प्रेजेंट किया था 6 फुल बजट, एंड सी.डी. देशमुख हैज प्रेजेंटेड द 7 बजट कंटिन्यूसली फ्रॉम 1951 to 56, okay. She is equally to them, okay. Nirmala Sitharaman equal his record by presenting the 7th budget in his row, 6 full budget and 1 interim budget, okay. And this is the first union budget by BJP led NDA, okay. NDA के द्वारा ये it is a first budget, okay. Finance Minister Nirmala Sitharaman mentioned in a budget there are 4 focus areas, okay, 4 major castes, that is गरीबी, it means poor, महिलाएं, that is women, युवा, that is youth, अन्नदाता, that is farmer, okay, in budget 2024, okay friends. And next we will see the budget theme. What are the budget themes? We will see the dwelling the budget themes. Sitharaman said that turning attention to the full year and beyond in this budget, we are particularly focused on the employment, skilling, MSME and middle class. ये चारों पे primarily focus किसका रहेगा बजट 2024 का, okay. She announced the Prime Minister package of 5 schemes and initiative to facilitate the employment, skilling and other opportunity for 4.1 crore youth over the 5 years period with a central outlay of 2 lakh crores, okay, 2 lakh crores. And next we will see in this year 1.48 lakh crore has been allotted for the education, employment and skilling, okay. 1.48 lakh crore rupees for this allocation. Budget priorities we will see, budget के क्या क्या priorities रहे हैं. In this we will see the finance minister said the pursuit of the Viksit Bharat budget envisages the sustained effort on the following 9 priorities for generating the ample opportunity for all. Ample opportunity के लिए there are 9 priorities, okay. These priorities are very very important, directly you can get in your examinations, okay. So let's see the 9 priorities one by one. The priority number 1 is the productivity and resilience in agriculture, employment and skilling, including human resources development and social justice. Fourth we will see, fourth that is manufacturing and servicing, urban development, energy security, infrastructure, innovation, research and development and next generation reform. And the highlight of this budget is the total expenditure of this budget estimate is how much? 48,20,512 crores, of which the total capital expenditure is 11,11,111 crores, okay. Keep it in mind this data, okay. Directly ये एग्जामिनर पूछ देता है, ठीक है. लास्ट ईयर PYQs आप देखेंगे तो इस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं, सो देखते रहेंगे चीजें. द कंपेयर टू रिवाइज एस्टिमेट 2023-24 द कैपिटल एक्सपेंडिचर इन बजट एस्टिमेट 2024 reflect increase how much percentage. This percentage is very very important. It is 16.9%, okay. Last year to this year it is increase. Budget effective capital expenditure is 15,01,889 crore rupees, and the budget estimate shows the increase of how many percentage? 18.2% over the revised estimate is 2023-24. The revised estimate we will see the 2023-24 the total expenditure was estimated at how much? 44,90,486 crore rupees, okay. Against this the total expenditure of this provisional actual PA, that is financial year 2023, it was how much? 44,42,542 crore rupees, and the total expenditure of this how much? 9,50,246 crores was estimated in 2023, okay. The next we will see the PA of financial year 2023 the total expenditure was how much? 9,48,506 crores, okay. The expenditure side we will see the government is estimated to spend how much? 48,20,512 crores in 2024, okay. The 8.5% is higher than the actual expenditure of 2023 and 24, okay. How much? It's a 8.5% more, okay, higher. The interest payment account for 24%,
ओके द टोटल एक्सपेंडिचर का कितना परसेंटेज, हाउ मच, इट्स 24% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर. सो दिस percentage is very very important. Okay, and the 37% of revenue receipts. Okay, how much percentage, 37%. Let's see the receipt side. Okay, the total receipt in 2024-25 are estimated 48,20,512, whereas the total receipt other than the borrowing, okay, other than the borrowings are 32,07,200 crores. It's a 15% higher than receipt 2023-24. Okay, how much? It's a 15% higher. Okay, friends, and also the total revenue receipts is about 31,29,200. Okay, let's see the next important things, that is how much rupees, sorry, wait a minute, we will see the rupee come from. Okay, from where the rupee come to the government of India, कहाँ से पैसा आता है. ठीक है, we will see the first one, we will see that is the borrowing and other liabilities. It's a 27%. These percentages are very very important. लास्ट ईयर के PYQs में देखेंगे, इवन RORO के एग्जाम में देखेंगे, आपको मिलेगा, ये डायरेक्ट परसेंटेज पूछ दिया है. सो कीप इट इन माइंड. बोरिंग एंड अदर लाइबिलिटीज, हाउ मच, इट्स अ 27%. ओके, GST का कितना परसेंटेज, 18%. ओके, एंड वी विल सी द इनकम टैक्स, इनकम टैक्स का कितना, 19%. एंड द कॉर्पोरेशन टैक्स दैट इज 17%. ओके, कस्टम 4%, यूनियन excise duties that is 5%, and non-tax receipt that is 9%, non-debt capital receipt that is 1%. Okay, so these are the percentage of rupee come from. Okay, so आपको क्या करना है, मगअप कर लेना, that's it. Okay, अब from where ये पैसा जाता कहाँ है, आता है, फिर जाता कहाँ पे देखेंगे. we will see this central scheme जो होती है excluding the capital outlay on defense and subsidy को हटा के, it's a 16%. Okay, very very important this percentage. Okay, interest payment में 19%, इट्स हायर 19%. ओके, डिफेंस में कितना जाता है, 8%. ओके, आप देखेंगे डिफेंस में सबसे ज्यादा मिनिस्ट्री को इस बार दिया गया बजट एलोकेशन में. सब्सिडी देखेंगे दैट इज 6%. ये PYQ है, पिछली बार सब्सिडी पूछ दिया था. ठीक है, सब्सिडी. एंड द फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर कितना, 9%. एंड टैक्सेस शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज दैट इज 21%. ओके, पेंशन कितना है आपका, 4%. ओके, द टोटल अदर एक्सपेंडिचर दैट इज 9%. 9% कितने अदर एक्सपेंडिचर. सेंटर स्पॉन्सर स्कीम जो होता है उससे कितना जाता है, 8%. पेंशन का ध्यान रखेंगे कितना, 4%. ठीक है, अब बताएंगे यूनिफाइड पेंशन सिस्टम कब लॉन्च हुआ. ओके, एंड नेक्स्ट वी विल सी द बजट एट अ ग्लांस. वी विल सी दैट इज इन दिस हाउ मच बजट्स आर एलोकेट फॉर दिस. ओके, रेवेन्यू रिसिप्ट कितना है आप देखेंगे, रेवेन्यू रिसिप्ट 31,29,200 crore. Okay, budget estimates. Okay, revenue, tax revenue net in center कितना, that is 25,83,499 crore. Okay, non tax revenue you will see how much, 5,45,701. Okay, crore rupees. Okay, that is net tax revenue. Okay, the capital receipt कितना है आपका देखेंगे, 16,91,312 crore rupees. ओके, टोटल रिसिप्ट आप देख लेंगे, टोटल रिसिप्ट कितना है, 48,20,512 crore rupees. ओके, इंपॉर्टेंट है. द टोटल एक्सपेंडिचर वी विल सी द 48,20,512 crores. ओके, द इंटरेस्ट पेमेंट इज हाउ मच, 11,62,940 crores rupees. ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर वी विल सी द 15,01,889 crore rupees. Okay, the revenue deficit side we will see the how much, 5,80,201. Okay, itna crore rupees. Okay, effective revenue deficit we will see that is 1,89,423 crore rupees. Okay, fiscal deficit FD देखेंगे, most important, that is we will see 16,13,612 16,13,312 crore rupees. Okay, primary deficit side we will see how much, 4,50,372 crore rupees. Okay, this is the budget at a glance. आप देख लेंगे आई दृष्टि का. एंड एक्सपेंडिचर ऑन मेजर आइटम. ओके, ये देख लेते हैं एक्सपेंडिचर ऑन मेजर आइटम. डिफेंस में देखेंगे आप 4,54,776 crore rupees. ओके, इतना है. रूरल डेवलपमेंट के लिए 2,65,808 crore rupees. ये
वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड है। एंड एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज हाउ मच 1,51,851 करोड़ रुपीज। होम अफेयर के लिए देख लेंगे, ये 1,50,983 करोड़ रुपीज। एजुकेशन, ऑन एजुकेशन हाउ मच 1,25,638। IT एंड टेलीकॉम सेक्टर में देख लेंगे, इन दिस द 1,16,342 करोड़ रुपीज। ऑन हेल्थ, okay, how much 89,287. On energy we will see how much 68,769. Social welfare how much 56,501 crore rupees. Okay, and the commerce and industry side we will see how much the 47,559. Okay friends, अगला देखेंगे we will see the tax on income. Okay, the tax on income of individual, firm, etc. other than the companies. Revised estimate on tax income 2023-24 is 10,22,325 crores against the budget estimate that is how much 9,575 crores. Budget estimate 2024-25 का देख लेंगे, ये कितना है, how much it is a 11,87,000 crore rupees. Okay, keep it in mind. The capital receipt side we will see, the capital receipt side we will see excluding the borrowing. Okay, borrowing को exclude करके are the target of how much 78,000 crore and increase how much 29% over the actual of 2023-24. 2023-24 के मुकाबले how much 29% कितना हुआ, increase हुआ है. Noted that the 2023-24 the actual for capital receipt, the capital receipt are 28% lower than the budget amount. Okay, lower than the budget amount, and lower receipt were on account of disinvestment target not being met. How much 46% कितना है, lower है. Okay, the capital gain tax we will see the short term capital gain tax on listed equity share units of equity mutual funds and REITs and InvITs is proposed to increase by from 15% to 20%. यानी 15% से कितना परसेंटेज, 20% क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के ऊपर कितना 12.5% across all asset category. Okay, this was the earlier how much 10% on listed equity share, equity mutual fund units and REITs, InvITs, and how much at 20% with indexation for other asset. indexation का कितना 20%. एंजल टैक्स जो भी इस बजट में रिमूव हो चुका है, ठीक है. इनकम टैक्स एक्ट प्रोवाइडेड फॉर लेवाई ऑन टैक्स अनलिस्टेड कंपनी के ऊपर जो टैक्स लगती है फॉर रिसीविंग फंड इन एक्सेस ऑफ फेस वैल्यू ऑफ देयर शेयर, फेस वैल्यू ऑफ द शेयर. दिस प्रोविजन इज टू अप्लाई, यानी इसको खत्म कर दिया गया बजट में. जीडीपी देख लेते हैं. गवर्नमेंट का एस्टिमेट कितना है, नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ है 10.5% 2024-25 में. रियल ग्रोथ प्लस इन्फ्लेशन भी है साथ में, ठीक है. ये देखेंगे इन्फ्लेशन है कि नहीं है. ट्रांसफर ऑफ स्टेट, द सेंट्रल गवर्नमेंट विल ट्रांसफर 23,48,980 crore rupees to the state and union territories. Okay, in 2024-25 it is increased from how much, ये यानी 11.9% इंक्रीज हुआ है ओवर द एक्चुअल 2023 से. ओके, द ट्रांसफर ऑफ स्टेट इंक्लूडिंग द डिवोल्यूशन ऑफ हाउ मच 12,47,211 करोड़ रुपीज आउट ऑफ द डिविजिबल पूल. सेंट्रल टैक्स ग्रांट एंड वर्थ कितना है आपका 11,01,769 करोड़ रुपीज. ओके, एंड न्यू स्कीम के लिए आप देखेंगे, न्यू स्कीम के लिए कितना 62,593 करोड़ रुपीज, दैट इज कितना 6.8% हैज बीन अलॉटेड फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर फॉर द न्यू स्कीम. ओके, न्यू स्कीम के लिए इतने करोड़ रुपये क्या किया गया, अलॉट किया गया. ओके फ्रेंड्स, सिंप्लीफाइंग द न्यू टैक्सेस रेजिम. ओके, आप देख लेंगे इसको. 0 से 3 लाख के लिए नील यानी नो टैक्स रेजिम, 3 to 7 लाख 5%, 7 to 10 लाख रुपीज 10%, एंड 10 to 12 लाख रुपीज 15% टैक्स देना है, एंड 12 to 15 लाख रुपीज पर एनम ये 20%, ठीक है. अब 15 लाख से ऊपर जो कमाएगा उसको कितने, ये 30% टैक्स देना होगा. ओके, स्टैंडर्ड डिडक्शन फॉर द सैलरी एम्प्लॉइज इंक्रीज फ्रॉम 50,000 to 75,000. ओके, डिडक्शन ऑन फैमिली पेंशन फॉर पेंशनर इंक्रीज कितना 15,000 रुपीज टू 25,000 रुपीज. ओके, कितना इंक्रीज किया गया 15,000 से 25,000. पैकेज फॉर PM5 स्कीम फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग. ओके, पैकेज क्या है आइए देखते हैं. प्राइम मिनिस्टर पैकेज ऑफ 5 स्कीम एंड इनिशिएटिव फॉर एम्प्लॉयमेंट स्किलिंग एंड अदर अपॉर्चुनिटी फॉर 4.1 करोड़ रुपीज ऑन यूथ ओवर 5 ईयर पीरियड. कितने 4.1 करोड़ यूथ के कितने 5 ईयर्स के लिए, ठीक है. ये ईयर्स याद रखेंगे. स्कीम ए में देखेंगे फर्स्ट टाइमर 1 मंथ सैलरी फॉर द अप टू 15
50,000 to be provided for 3 installment to first time employees registered in a EPFO. Okay, the scheme B, job creation in manufacturing, incentive to be provided for specific scale directly both employees and employer, okay, with respect to the EPFO contribution first 4 years of employment, फर्स्ट 4 years के लिए एम्प्लॉयमेंट में दिया जाएगा। स्कीम सी देख लेते हैं, सपोर्ट टू एम्प्लॉयर्स, गवर्नमेंट to reimburse the up to 3,000 per month for 2 years towards EPFO contribution of employers for each additional employees. Okay, important है EPFO वाला, ठीक है। And next one, friends, fourth one we will see, then that is, wait a minute, fourth one देखेंगे, new central sponsor scheme for skilling. Okay, 20 lakh youth to be skilled over 5 years. Okay, and 1,000 industrial training institute to be upgraded in a hub in spoke arrangement. Okay, important है ये, क्योंकि ये जो दिया हुआ है आपको पांचों ये याद कर लेना है, उसके क्या क्या चीजें मेंशन की गई है। लेट अस सी द न्यू स्कीम फॉर internship 500 top companies to 1 crore youth in a 5 years, 1 crore youth in a 5 years. Okay, and next slide, in this expenditure on major items. Okay, what are the expenditure? पेंशन, डिफेंस एंड फर्टिलाइजर की सब्सिडी के लिए आप देखेंगे कितना, पेंशन के लिए कितना है 2,43,296 crore. Okay, and for defense 4,54,773 crores. Okay, and फर्टिलाइजर के लिए कितना, ये 1,64,000 crore. Okay, फूड पे आप देखेंगे, फूड पे कितना है 20,05,250 crores. Okay, on petroleum how much, 11,925. एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर में देखेंगे 15,01,851 crores. ओके, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के लिए देख लेंगे कितना 47,559 crores. ओके, एजुकेशन ऑन एजुकेशन हाउ मच 1,25,638 crores. ओके, एनर्जी में देख लेंगे, एनर्जी में कितना है 68,769 crores. ओके, एक्सटर्नल अफेयर के लिए 22,155 crores. फॉर फाइनेंस हाउ मच 86,339 crores. ओके, एंड फॉर हेल्थ 89,287. ओके, दिस डाटास आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है, ठीक है। कई बार इसको लिख लेंगे तो यू विल बी लर्न. ओके, इंटरेस्ट में देख लेंगे, इंटरेस्ट में हाउ मच 11,62,940 crores. ओके, इंटरेस्ट में. ओके, आईटी एंड टेलीकॉम में देख लेंगे हाउ मच 11,06,342. रूरल डेवलपमेंट के लिए आप देखेंगे 26,05,808 crores. ओके, ट्रांसफर टू स्टेट कितना देगा 3,22,787 crore रुपीज. ट्रांसपोर्ट के लिए कितना 5,44,128 crore रुपीज. एंड नेक्स्ट वी विल सी दैट इज ट्रांसफर का ऑलरेडी. नेक्स्ट यूटी का देख लेंगे, ठीक है, यूटी का दैट इज 68,660 crore रुपीज. एंड अर्बन डेवलपमेंट के लिए 82,577 crores. एंड द टोटल ग्रांट कितना आपका हो गया 48,20,512 crore रुपीज. ओके, एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्लान फॉर इंडोमेंट रिच स्टेट इन ईस्टर्न पार्ट कवरिंग द बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश फॉर जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी टू अटेन द विकसित भारत. ओके, पूर्वोदय के बारे में, ठीक. एंड अगेन द इंडस्ट्रियल नोड एट गया टू डेवलप अलॉन्ग द अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में क्या इंडस्ट्रियल नोड कहाँ पे, गया में, ठीक है, डेवलप किया जाएगा. पावर प्रोजेक्ट कितना इंक्लूडिंग न्यू 400 मेगावाट पावर प्लांट वेयर पीरपैंती टू बी टेकन अप एट द कॉस्ट ऑफ 21,400 crores. ओके, this place is very important. Okay, Andhra Pradesh Reorganization State Act. We will see industrial node Koparthi, industrial node at Koparthi, ये नाम याद रखेंगे, along the Visakhapatnam Chennai industrial corridor and at Oraval and along the Hyderabad Bengaluru industrial corridor. Okay, ये याद रखेंगे, ठीक है. एंड मुद्रा लोन के बारे में जो लिमिट इंक्रीज कर दिया गया है अंडर द तरुण कैटेगरी दैट इज 20 लाख रुपीस का इंक्रीज किया गया है, किससे 10 लाख रुपीस पहले था, ये अब क्या हो गया 20 लाख रुपीस मुद्रा लोन टेबल होगा. ओके, अंदर तरुण कैटेगरी, ये ध्यान रखेंगे तरुण कैटेगरी में.
Okay, PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana has been launched to install the rooftop solar plant, enable 1 crore household to obtain the free electricity up to 300 unit every month. 300 यूनिट एवरी मंथ क्या किया जाए, फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया जाएगा अंडर PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना. ओके, and the scheme has granted the remarkable response with more than 1.28 crore registration and 14 lakh application. Okay, 14 lakh application. नेक्स्ट देख लेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट दैट इज 11,11,111 crore rupees, that is 3.4% of the GDP is to be provided for the capital expenditure. Okay, कैपिटल एक्सपेंडिचर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या होता है ना, रोड होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग होती है, तो जिससे आपको रेवेन्यू एक जनरेट मिलता है, रेवेन्यू मिलता है गवर्नमेंट को. ठीक है, इट विल हेल्प इन ग्रोथ ऑफ कंट्री. ओके, वहीं पे आप देखेंगे जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है इट्स नॉट गुड फॉर कंट्री, बिकॉज रेवेन्यू में क्या होता है, आप सैलरी देंगे, ओके, पेंशन, ओके, ये सारे खर्चे हो जाते हैं आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, तो इससे गवर्नमेंट को ओवरऑल कोई बेनिफिट्स नहीं मिलता है. ठीक है दोस्तों, इसलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर को गवर्नमेंट को ज़्यादा खर्च करनी चाहिए एज कम्पेयर टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. इसलिए आप देखेंगे पेंशन का सिस्टम जो है अभी वो कम कर रही है. ठीक है, एंड नेक्स्ट वन टूरिज्म देख लेते हैं. टूरिज्म कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट फॉर विष्णुपद टेम्पल कॉरिडोर, महाबोधि टेम्पल कॉरिडोर एंड राजगीर, कहाँ पे, राजगीर में. ओके, एंड डेवलपमेंट ऑफ नालंदा एज द टूरिस्ट सेंटर. नालंदा में क्या किया जाएगा, टूरिस्ट सेंटर बनाया जाएगा. NPS वात्सल्य के बारे में जान लेते हैं. NPS वात्सल्य एज अ प्लान फॉर कंट्रीब्यूशन ऑफ बाय द पेरेंट्स एंड गार्जियन फॉर माइनर. ठीक है, ये स्कीम इंपॉर्टेंट है. एंड नेक्स्ट वी विल सी दैट इज अदर आउटले एंड स्कीम के बारे में कितना रुपीस, हाउ मच रुपीस आर कंट्रीब्यूटेड. ठीक है, अंडर द बजट 2024 देख लेते हैं. महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम में आप देखेंगे 86,000. ओके, 86,000. ओके, एंड प्रधानमंत्री आवास योजना जो अर्बन वाला है, हाउ मच, 30,171. ओके, एंड प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल में देख लेंगे 54,500. ओके, जल जीवन मिशन में देख लेंगे, जल जीवन नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर मिशन में आप देख लेंगे 70,163. ओके, एंड नेशनल हेल्थ मिशन में आप देखेंगे, नेशनल हेल्थ मिशन में आप देखेंगे जो 38,183. ठीक है, रुपीज़. ओके, एंड समग्र शिक्षा में देखेंगे, समग्र शिक्षा में आप देखेंगे हाउ मच, 37,500. ओके, सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.2 है, उसमें आप देखेंगे 21,200. ओके, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में देखेंगे आप 19,000. एंड प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण पोषण में देखेंगे, PM पोषण में कितना, 12,467. ओके, एंड प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में आप देखेंगे 9,339 रुपीज़. एंड आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में देखेंगे आप, इसमें क्या है 7,300. ओके, एंड आगे नेक्स्ट वन स्वच्छ भारत मिशन जो अर्बन है उसमें 5,000 करोड़ रुपीज़ का बजट एस्टिमेट है. ओके, एंड स्वच्छ भारत मिशन में ग्रामीण में देखेंगे आप 7,192 करोड़. मिशन शक्ति में देखेंगे 3,146. मिशन शक्ति जानते हैं ना, विमेन के एम्पावरमेंट के लिए ये मिशन चलाया जा रहा है. एंड प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान PM उषा में देखेंगे 1,815 करोड़ रुपीज़. एंड PM वात्सल्य में हाउ मच, 1,472 रुपीज़. ओके, एंड प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में देखेंगे आप हाउ मच, 60,000. ओके, 60,000 रुपीज़. ओके फ्रेंड्स, बजट ये कंप्लीट हो चुका है. इकोनॉमिक सर्वे का कल वीडियो आ जाएगा. ठीक है, और आप देख रहे होंगे लक्ष्मीकांत का जो रैपिड रिवीजन सीरीज चल रहा है मैम के द्वारा, आप जाके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं दोस्तों. ठीक है, और इसका वन लाइनर वाई दृष्टि का वन लाइनर पार्ट 1 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, पार्ट 2 शाम तक आ जाएगा. तो फ्रेंड आप देखते रहिए, बी इन टच विद अस. ओके, थैंक यू, जय हिंद.